A very warm welcome from the beautiful Gaddafi Stadium, Lahore. This is the final of Air Sial presents the University of Lahore Quaid-e-Azam Trophy. Day number 5, the last day of the game. Karachi Blues taking on Sialkot region. Two good teams up against each other in the final. Although Karachi Blues have really dominated this game all throughout 5 days, courtesy to some excellent performance from the youngsters, Abdullah Fazal and Haroon Rashid in particular. They've got South Shakil, lots of experience in that. Sialkot region on the other hand, they've struggled. They did have some great paces in their side, but they have not been able to deliver on this big occasion. Remember, Sialkot region won the toss and decided to bowl first in this big final. And that's how the match stands at the moment at the start of the 5th day. Sialkot need 521 runs to win. That's a tall task for them on the last day, where the ball is doing a lot throughout the 5 days. Lots of credit to Haroon and Abdullah, the way they have played. 88 for Abdullah in the first and a century in the second from the same batter. Look to go big, at least for their own self. Even if they're not able to win the game, just end the season on a high. Get a big one. Huraira especially, he has the ability to do it. Straight away, the length is good, but the line may be a little touch offside-ish. Yeah, it's the first delivery and straight away there's movement, there's good carry. And he thinks this is wonderfully struck. No chance for the fielder in the deep, and I don't know why he's in the deep. They're defending 520 and he's still there. Oh, that's lucky, very lucky. He will get a boundary, but not an ideal way to get it. Some other day, it would have easily gone on to hit the stumps. 7 done, 30 for none. Till the end. This is a close shout. And it's given. Swinging in, hitting him in front of the stumps. And this is where bowling in the right channels can be so useful, attacking the stumps. And this is exactly what Karachi has been doing. Azan Awais looks disappointed, but when the new ball swings and seams both together, there's not much you can do. No problems with the front foot. This is Huraira playing the other ball. Probably Azan would have wished that this was... yeah, this is something Azan would have wished he wasn't facing. But the man out is man on your screens. Azan Awais scoring 11 of 18. White ball cricket में ऐसा चलता है और शॉर्ट गेंद को यहाँ चलता किया. इस बार गेंद ज्यादा दूर नहीं थी मिड विकेट के फील्डर से. बेहतर पुल शॉट हुरैरा का. दिल का शॉट खेला, झुक गए इस पर अब्दुल्ला शफीक और उन्होंने कमाल चौका पाया. खूबसूरत टाइमिंग. इनकी पुरानी वाबस्तगी है कराची में. खूबसूरत शॉट, बहुत आला. अगले कदम पर अब्दुल्ला शफीक ने ये चौका लगाया और इस ओवर का इख्तिताम भी आगाज की तरह बाउंड्री पर किया. 5 ओवर लगाया फिर उसामा मीर ने, और अब उमर नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद को अंदर बाहर कर रहे हैं. और ये देखिए इस बार थोड़ा चूक गए और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब अच्छे तरीके से खेला है, बिल्कुल महफूज और ज़मीन के साथ लगता हुआ ये स्ट्रोक 4 रन के लिए जाके बाउंड्री लाइन को टकरा चुका है. और जब इस गेंद के बाद बात करेंगे थोड़ी और दिफाई स्ट्रोक, लेकिन अच्छा टाइम किया है, सिर्फ गाइड किया मैं कहूँगा. इस बार 1 रन बनाया, दूसरा बनाएंगे, फील्डर गेंद के पीछे गए और जब तक वो गेंद को फील्ड करते मेरे ख्याल में उन्होंने गेंद को जाने दिया, उसको दी. कोई डाइव नहीं की, कोई गैर मामूली काविश नहीं की. बड़ा शानदार चौका पॉइंट ऑफ व्यू से. पुल शॉट खेला, इसको अल्लाह के फील्डर नहीं देख सके और उनका ख्याल था कि वाइड मिड ऑन से खिलाड़ी इसे रोकने में कामयाब होंगे,
लेकिन बिल्कुल मौका नहीं था मुश्ताक के पास। 4 रन का और इजाफा। Taken! That's a beautiful catch by Saad Beg behind the stumps. It's Umar who strikes, and Herrera, we've been talking about his caliber, he goes. And that's a good wicket to have, Umar. He's been very consistent in his line, in his length. Finally, he's been rewarded for his excellent bowling. There's no problem at this end. Again, that area, consistency, again poking at it, pushing at it, and an excellent catch by Saad Beg behind the stumps. Yeah, Herrera paying the price for having an open-faced bat while defending. This is what he was doing on the back foot. He's done the same on the front foot, and finally he's paid the price, going out for 39. So whenever you are going to go too far away from the off stump to defend, naturally your bat face is also going to stay open. So this one is just guided through point. Boundary for Rahman to get off the mark. And this one is flicked on the pads, and a certain boundary. On the pads, left-handers, almost every one of them plays elegantly. Yeah, there's protection, there's a fielder, but he misses it. He makes a mess of it. Abdullah Shafiq will gladly take those boundaries. Beautiful. Excellent batting from Abdullah Shafiq. He was been looking to be positive, getting the boundary. The second of the over, courtesy to an excellent cover drive. He looks so elegant playing that cover drive. फाइनल की जानिब खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर थे लेकिन कट ऑफ नहीं कर सके। गेंद खासी तेज गई। लाहौर में यहां दूसरी इनिंग्स में अच्छा खेले थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में पहली इनिंग्स में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर आउट हो गए सेट होने के बाद। और यहां इनके 50 रन मुकम्मल हो गए। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनने खेल पेश किया है। इस सीजन में ये चौथी निस्फ सेंचुरी है अब्दुल्ला शफीक की कायदे आजम ट्रॉफी में, और अच्छी बैटिंग की उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ। 100-200 भी बना सकते हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं। इस बार ये आउटसाइड द लेग स्टंप गेंद थी, इसको फ्लिक किया और बाय के 4 रन मिल गए अब सियालकोट को। बेवर्ड लाइन और लेंथ थी और इसको गए थे खेलने के लिए, लेकिन बैट और बॉल का कांटेक्ट नहीं हुआ। That's an onslaught going over long on for a towering 6. Yes, it was again Abdullah Shafiq with meat of the bat and going all the way in front of us for a 6. Yeah, slightly tossed up, and it was enough of an invitation for Abdullah Shafiq, who was fully committed to this stroke, coming down and playing it with a full flourish and making a very decent connection. Here it's played in Winters. And top edge, and Shan makes no mistake. And he is claiming the catch. Mohsin is standing and he isn't happy. Now he starts to move. And another wicket for Karachi Blues. And Saqib's outswingers have paid. He bowled to the area of uncertainty, and Mohsin Riaz was shocked. And here you can see it was a legal delivery behind the popping crease. His front foot landed, and here comes the delivery. Mistimed, misjudged, and nicely taken by the gentleman cricketer Shan Masood. Another wicket have fallen. Mohsin Riaz gone for 6. Catch Shan bowled Saqib. He's not trying much else. Oh, wow. And caught. And it was around the corner. Abdullah Shafiq, the set batter, knowing that the ball is swinging away, decides to play towards the onside, closes the face of the bat, gets the outside edge, and the fielder at slips, Abdullah, who has had a great game with the bat, makes no mistake in catching that. As Karachi will now
think that they are closer to getting this side out because they've got their mainstay Abdullah Shafiq back in the hut. Just have a look at this. How can you play such a stroke when you are beaten on previous occasions with the ball swinging away? Once again, Abdullah Shafiq, he'll be disappointed, scoring 59. Though a beginning, but still such delivery may give him some confidence. Middle and leg, and he nicely guided that delivery to the backward square leg area. Again, he's having most of the fielder on the offside, but he's staying down the leg side, getting another boundary by Afzal. A good shot to play. उठाकर खेला मिड ऑन के ऊपर से, बमुश्किल पार किया शान मसूद को। खासा उछले थे लेकिन आखिर में उनका हाथ हवा को ही छू सका। चौके के साथ 157 सियालकोट। एक बार फिर हवा में खेला, अब मिड ऑफ से बाला बाला 4 रन और पाए अफजल मंजूर ने। इसे हुक शॉट खेला, यहां स्क्वायर लेग के पीछे 4 रन के लिए। उम्दा तरीके से अपने पिछले पांव पर घूम गए हमजा नजर। कदमों का इस्तेमाल किया, सर के ऊपर से खेले, 4 रन यकीनी मिलेंगे अफजल को। एक और चौका सियालकोट रीजन के नाम। अब ऑफ साइड में मजीद रन, 4 रन बैकफुट पर पूरी तरह फोर्स किया। यॉक करने की कोशिश की, अच्छा खेला 4 रन के लिए। उम्दा डिफ्लेक्शन, अच्छा इस्तेमाल किया इस लेंथ और रफ्तार का। फिर से वही तेज लेग ब्रेक की तरह, मूवमेंट, बाउंस, अच्छा मुकाबला। गेंद और बल्ले के दरमियान 184 पे 5। यहाँ अंपायर्स ने फैसला किया है कि खाने और यहाँ पर नमाज जुमा का वक्फा कर दिया जाए। शायद बल्लेबाज भी इसके लिए तैयार नहीं थे। इस सेशन में 39 ओवर्स हुए, खासा तवील दौरानिए का ये सेशन था। यह 3 घंटे का ये सेशन रहा। सियालकोट रीजन क्योंकि 184 रन ही हैं और 5 विकेट्स इनकी गिर चुकी हैं। 5 मेन बैटर्स वापस जा चुके हैं। 39 रन बनाए हुरैरा ने, अब्दुल्ला टॉप स्कोरर रहे 59 रन बनाकर। और अब जो 2 नॉट आउट बैटर्स हैं वो है हमजा नजर, जिन्होंने 50 रन बनाए थे पहली इनिंग में, 9 रन पर मौजूद हैं। और अफजाल मंजूर, उन्होंने 32 रन बनाए हैं 43 ओवर में 184 रन। यहाँ साकिब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद उमर और रमीज भी विकेट टेकर हैं। हैरानकुन तौर पर उनका जो इस्तेमाल था वो कराची के लिए अच्छा रहा। उसी से पार्टनरशिप ख़त्म हुई और कराची ने बड़ी हद तक टॉप ऑर्डर को मार गिराया सियालकोट के इस दूसरी इनिंग्स में भी। और इस वक्त जीत से वो हाथ मिलाने के फासले पर। कराची ब्लूज ने पहली इनिंग्स में 340 और दूसरी में 458 रन बनाए। सियालकोट रीजन ने 266 रन बनाए पहली इनिंग्स में, खासा पीछे रह गए। 74 रन की बढ़तरी थे कराची को। यही वजह है कि बड़ा हदफ है यहाँ पर 533 का सियालकोट के सामने, और उसका पीछे करते हुए 184 पर 5 खिलाड़ी आउट हैं और 1 सेशन का खेल बाकी है। तो इस वक्त खाने और नमाज जुमा का वक्फा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। Tariq Rashid all set. He's making sure that everything is in place to start the second and the last session, because this was just 2 sessions for today.
extended break. Right arm over, let's play. Mohammad Umar will start off the proceedings from the media center end. He will be bowling to Hamza, who's on 9 not out. And on target, like he's always been in this game. To see the pool increasing and increasing, more responses coming, more excitement coming. That was a pitch, but placed nicely for 4. Hopefully are going to stay in the right direction, as this one is an inside edge. Could have been easily stumps, but not to be lucky for Afzal, who now moves to 36. Senior general manager, I forgot. He's always been very particular with his positions. This one is played to fine leg for another boundary. लेकिन दोनों ही की जो स्टॉक डिलीवरी है वो आउट स्विंग करते हैं और 50 रन्स अफजाल ने यहां पर मुकम्मल किए। सिर्फ और सिर्फ 33 गेंदों में उन्होंने जारहाना बैटिंग की, खुलकर खेले स्टोक और अपनी टीम को उन्होंने अभी तक हार से बचाए रखा। 5 विकेटें जल्दी गिरने के बाद बहुत ज़्यादा दबाव था सियालकोट पर। आखिरी दिन की पिच पर ये बड़ी उम्दा कारकर्दगी अफजाल मंजूर की। आप एक टूर्नामेंट में बैटिंग ट्रैक भी दें ताकि फास्ट बॉल लंबी ओवर कर सकें, फिर उस तरीके से बैट्समैनों पर पूरी अपॉर्चुनिटी हो। फिर उसके बाद हमें उसी ट्रॉफी के अंदर अगर आप हमें दे सकें कि एक स्पोर्टिंग ट्रैक्स जहाँ पे बैट्समैनों को भी अपॉर्चुनिटी ज़रूर हो लेकिन फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करें, वो थोड़ा सा इजी ट्रैक कम से कम, क्योंकि अगर 5 डे क्रिकेट है, 4 डे खेले थे तो ये मैच 5वें दिन जाए। तो डेलिबरेटली विकेट को ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, हालांकि हमने इसको ड्राई रखा, इसको कॉम्पैक्ट रखा ताकि एक लंबी क्रिकेट हो सके जिसको हम मिस कर रहे थे। इस साल से पहले लास्ट ईयर से पहले भी हमने जो है ना कायदन ट्रॉफी भी जीती थी, T20 भी जीता, वनडे कप का फाइनल खेला, अंडर 19 अंडर 15 सब चीज़ कराची ने जीती थी, क्योंकि हमारी डिमांड होती कि फिर दूसरी इस वक्त हमें नीड नहीं थी, तो इसलिए हम अपना जो हमारी प्लानिंग थी कि हम पूरा दिन खेलें। और आप ये देखें कि जी बिल्कुल, हमजा नज़र जो है इनका ताल्लुक गालबन मंडी भावुद्दीन से है और ऑलराउंडर है बड़े ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पे जब स्पिन ट्रैक का रूज आया, क्योंकि सियालकोट की टीम इतनी बड़ी है, इसका आप बैकअप में देखें इतने सारे प्लेयर्स, मेहरान मुमताज़ भी बाहर हैं। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और विकेट कीपर को कैच दे बैठे। रमीज ने एक बार फिर पार्टनरशिप को तोड़ा। आज के दिन में दूसरी बार बहुत दूर से अपना बल्ला दे फेंका अफजाल ने और आसान कैच दे गए। और यहां से फिर एक खिड़की खुली है कराची के लिए, जहां तक इस फाइनल में कामयाबी का ताल्लुक। यहां तो ये अब देख सकते हैं मिड विकेट के ऊपर स्लॉग करने के लिए गए। फर्स्ट क्लास फाइनल में ऐसा शॉट खेलने से गुरेज करना चाहिए था, खासतौर पर इस मौके पे। ग्राउंड इंटरनेशनल ग्राउंड था हमारा, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हुई सारी, और वो भी खत्म कराया गया था। अभी हम उस पर टेकअप करें, अभी हम उसको टेकअप करें और उसको डेवलप करें। वहाँ हम इस तरह क्लस्टर में पूल्स बना रहे हैं, इसी तरह हैदराबाद, सक्कर और हब ग्राउंड का पूल बना के, कोयटा में पूल बना के, ताकि हम पूलिंग में फिर जहाँ हमारा दिल करें वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट करा सकें अपनी टॉप टियर की। Oh, another short ball, and this time it's gone. Umpire raises his finger, and Hamza Nazar will have to walk back to the dugout. So the bouncers were pretty consistent, and finally they have broken through. Yeah, the hard work finally paid off for Mushtaq. He's been bending his back in this spell, looking for a wicket, and finally got one. He was persistent with the bouncers, and finally he got one to Saad Beg that ends the resistance of Hamza Nazar, who played really well for his 56 runs, scored a 50 in the first inning also. So 7 down now Sialkot with 281 on the board. बड़े खुश और मुतमईन होंगे। अपरकट किया,
इसे खूबसूरत तरीके से हसन अली ने 4 रन के लिए। फील्डर डीप पॉइंट पर थे और दूसरे डीप स्लिप में थे बाउंड्री पर। चार्ज किया और गेंद को उठा मारा लॉन्ग ऑन पर, और यहां ये बाहर गई है। फलक शगाफ छक्का हसन अली का, निडर होकर खेले। प्लेयर ऑफ यहां पर मौका है, बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे पुल शॉट खेलने के, और अच्छा कैच लिया हारून ने। पीछे की तरफ भागकर जाना, उनके सामने सूरज भी था और गेंद को जा लिया। और हसन अली ये अच्छा शॉट बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा ऐसे मौके पर, जब उनकी टीम को मैच बचाने की फिक्र करनी चाहिए थी। क्योंकि पिछले 1-2 ओवर में उनके शॉट्स खुल गए थे, शॉट्स लग रहे थे। तो हमने बहुत बार देखा है जब आप उस जोन से बाहर आते हैं तो आप गलत शॉट खेल बैठते हैं। यही हुआ, बहुत बाहर और बहुत ऊपर की तरफ बॉल था ये। और जब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पीछे बॉल किया गया है और उसको हुक खेलने की कोशिश की गई है, जैसे क्रिकेटिंग जुबान में कहते हैं कि बॉल खड़ी हो गई, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हसन अली के साथ हुआ। 25 रन बनाए उन्होंने 27 बॉलों पे, 304 पे 8। और तवील से तक वो विकेट पर मौजूद रहते थे। और ये अपील हो रही है और लगता है कि आउट हो जाएंगे मोहम्मद अली। तो इस तरह उनकी इनिंग का खात्मा हुआ और ये नवी विकेट है जो कि मिल चुकी है कराची ब्लूज को। कामयाबी हासिल हुई है साकिब को, और ये आउटसाइड द लेग स्टंप गेंद जा रही थी, इसको फ्लिक करने की कोशिश की मोहम्मद अली ने। गेंद बैट के बाहर वाले या अंदरूनी किनारे को लगती हुई, लगता है अंदरूनी किनारे को लगी है। ये बिल्कुल ठीक डिलीवरी थी, ओवर द विकेट गेंद की थी ये साकिब ने। और जिस तरीके से बैटर खेले वो बिल्कुल आपके सामने है। एज लगा, शुक्रिया के साथ विकेट कीपर ने ये कैच लिया और एक और कामयाबी हासिल हुई है कराची ब्लूज को। आउट होने वाले बैट्समैन मैदान से बाहर जाते हुए मोहम्मद अली। और बोल्ड कर दिया, काम तमाम साकिब के हाथों। यहां हसनैन बोल्ड हुए और इस तरह कराची की टीम ने चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। 218 रन से उनने कायदे आजम ट्रॉफी 2025 का फाइनल लाहौर में जीता है। और नो बॉल का कतई तौर पर खतरा नहीं, पीछे हटे बाउंसर की तवक्को थी हसनैन को, लेकिन गेंद उनकी स्टंप्स में आ रही। और इस तरह कराची ने ये शायान शान अंदाज में टूर्नामेंट और जीत हासिल कर ली। 314 रन सियालकोट ने बनाए, 533 उनका हदफ था। और कराची जिनके लिए इब्तदाई दिनों में हालात इतने सहल नहीं लगते थे, लेकिन बाद अज़ाम उनके सीनियर उनके जूनियर्स ने मिलकर इस टीम के लिए ये बड़ा यादगार दिन मुमकिन बनाया। कप्तान सऊद शकील और सभी के लिए ये लम्हा नवीद मुसर्रत से कम नहीं। सियालकोट की टीम पहले दिन से ही वो पिछले कदम पर रही है इस कलीदी फाइनल में, और साद जो इस सीज़न को कभी भी नहीं भुला सकेंगे। और कराची का जैसा कि आपने बताया कि आज एक बड़ा शानदार यादगार दिन है उनके लिए। उन्होंने बड़े मार्जिन से 218 के शगाफ से शिकस्त दी है सियालकोट को और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अब कराची में इस जीत के बाद इनकी जो मुकामी क्रिकेट है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी, जो थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी। और यकीनन उन्होंने गुज़िश्ता से पैवस्ता अपनी वो रवायत को सब बुलंद रखा है जिस शहर ने, जिस इलाके ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रॉफी कायम ट्रॉफी को ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा जीता है। ये स्कोर कार्ड है सियालकोट रीजन का। और नुमाया रहे 59 रन बनाकर अब्दुल्ला, 56 रन की इनिंग खेली हमजा नज़र ने, 63 रन बनाए अफजाल ने, 25 रन की इनिंग खेली हसन अली ने। और फिर इस तरह 314 रन बनाकर, जिसमें 24 एक्स्ट्रा रन शामिल थे, 71.1 ओवर में सियालकोट की टीम आउट हो गई। एक बड़ा मार्जिन 218 रन का रहा जीत का कराची के लिए। और कराची के लिए ज़ाहिर है कि इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि वो लाहौर पहुँचे और जहाँ पर उन्होंने इस मारकतुलरा, इस हंगामा खेज क्रिकेट मैच में कामयाबी हासिल की बड़े मार्जिन से। और किसी भी मौके पर मासवाए पहले दिन के जब टॉस जीता उसामा मीर ने, ये नहीं लगा कि कराची पीछे है और सियालकोट आगे है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। 3 बल्लेबाजों ने 19 सेंचुरियां बनाई, लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं, 5 विकेटें हासिल की साकिब खान ने। इसलिए ये दिन
उनके लिए यादगार बना। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने बड़ी नपीतुली बॉलिंग की थी। उमर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मुश्ताक भी लंबे स्पेल करते रहे। 17 ओवर्स 1 मेडन, 82 रन, 2 विकेटें। और लेफ्ट आर्म स्पिनर काशिफ भट्टी को 10 ओवर्स के लिए आजमाया गया। उन्होंने 35 रन दिए। रमीज का जो स्पेल था वो बड़ा वाइटल था। आज के दिन 2 बार आकर वो पार्टनरशिप ब्रेकर साबित हुए। हारून को 1 ओवर के लिए लाया गया आखिरी सेशन। सऊद शकील की कप्तानी भी जल्द मिसल रही। उसामा मीर ने भी अच्छे तरीके से मैनेज किया। ये मैच समरी है 340 कराची रीजन्स। ये अब इस टोटल ने मोहर साबित कर दी एक अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से। कैसी विकेट के ऊपर जिस पर दरारें मौजूद थी, विकेट पर गेंद ऊपर भी आता था और बाज़ औक़ात नीचे भी रहता था, लेकिन 340 एक बड़ा टारगेट था। 266 रन बनाए जवाब में सियालकोट डिवीजन ने। ये कम स्कोर था, ये एक हकीर सा टोटल था। फिर 458 रन की एक मजबूत इनिंग खेली कराची रीजन्स के बैटर्स ने और अपनी पोजीशन को नाकाबिले तस्कीर कर लिया। 314 रन बनाए दूसरी इनिंग में सियालकोट रीजन्स ने। तो इस तरह फिर हुआ ये जो आपके सामने है। 218 रन से कामयाबी हासिल की कराची रीजन्स ने और इस फाइनल को जीतने के लिए अपनी एक यादगार मार्जिन वज़ा किया। ये वो तस्वीर है ये कभी आप भुला नहीं सकेंगे। यकीनी तौर पर ये खिलाड़ी यहाँ से इसको अपनी ड्राइंग रूम की जीनत बनाएंगे। KCCA की ये जीनत बनेगी।